Hare Krishna, I am Aman Chopra from Learn Gita, Live Gita, Graphic Era University. And today we are going to have our first podcast session of Learn Gita, Live Gita. And our guests are Mrs. Juhi Bhandari and Miss Khushbu Onial. They both are pursuing PhD from the Graphic Era University as a research scholar and managing their spiritual journey along with. So today we would welcome Miss Khushbu and Mrs. Juhi for our podcast session. And we would like to start by paying obeisances to our gurus. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. So, I just got to know you both are pursuing spirituality. आप दोनों भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ ग्राफिक एरा में एज अ PhD रिसर्च स्कॉलर आपने ज्वाइन कर रखा है. तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा. कितने टाइम से आप भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो? तो मैंने स्टार्ट करा था जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी. सो इट वाज अबाउट 2005 एंड नाउ वी आर इन 2024. Oh my God. So you can see how many years it has been, but my Almost 20. spiritual progress had been little slow. Okay. तो मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था, हमारे घर पे मेरी मदर के फ्रेंड्स आते थे हाँ. और वो हमें भगवत गीता दिखाते थे. दे यूज्ड टू शो अस सम पिक्चर्स ऑफ भगवत गीता एंड वी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. सो बेसिकली वी यूज्ड टू हैव नॉन-वेज also before Okay. that. Before 2005. But because we were children, so when we saw the pictures showing what punishments we get after death Okay. if we go for eating non-veg, Hmm. then we immediately stopped that practice. So gradually they introduced more about Bhagavad Gita and we also became inquisitive about it, because Bhagavad Gita is a thing, is something, is a life manual which is inspiring you a lot. That's why we got connected. That's how we got connected to Bhagavad Gita and ISKCON. They introduced us to ISKCON also. Then we start going to their place and doing kirtans and aartis, reciting shloka, learning shlokas, and also playing some spiritual games. Okay. So after that, when I was in 10th standard, most of the devotees left the place we used to live in. So basically, because we know sadhu sang sarva shastri kahe, love matra sadhu sang sarva siddhi hai. But because most of the devotees left the place. Can you explain this verse? Yeah, I will explain. So it's basically because most of the devotees left the place, we didn't get so much of association. And the association of devotees is very important. That's what this shloka is saying. साधु संग सर्व शास्त्र है. सभी शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे लिए साधु संग बहुत जरूरी है. और अगर एक पल का भी, एक सेकंड से भी, अगर मिली सेकंड का भी अगर साधु संग मिल जाता है तो हमारी हमें सब सिद्धियां हो जाती हैं और हमें भक्ति प्राप्त होती है. तो because our association was not there, it got disconnected. So I also got somewhat disconnected from ISKCON. But I don't know what happened after. When I came to graduation, I was passing through some place where this kirtan was going on in ISKCON only, of ISKCON only. So I joined the kirtan and I started talking with the devotees again. They invited me for Prabhat Fairies, you must be knowing. So we used to take Jagannath ji in the Prabhat Fairy and I used to join them. I told them I do some kirtan, I used to play guitar at that time. So I got reconnected with it because Krishna wants everyone to get connected with him. So I got reconnected. Although I left, I left for like
5 years or something, because I was in 5th or 6th, then I left and rejoined in हाँ, फिर मैं 10th में करा था, और उसके बाद ग्रेजुएशन में हुआ था। ओके 11th 12th और ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में, तो 4 साल हो गए। Because I left in 5th and rejoined in second year of my graduation. yes So it was about 4 years that I left the spiritual practices. But because Krishna wants us to be connected with him all the time, that's why he got me reconnected with Bhakti. And that was the journey of getting into ISKCON actually. Then after basically when you are not facing any problems in life, you don't understand the value of bhakti. When you start getting challenges, then you understand how bhakti is important for you, how spiritual life is important for you, because you are not going to take seriously even if everything is in your plate. Everything is there in your plate, but you are not taking it seriously. Why? Because you think that you want to enjoy life, enjoy material things, you have so many desires. But once you start facing these problems, you get to know that if it's not there, then nothing is there. exactly Your value is nullified if bhakti is not there in your in life. fact my before asking like another question, my other question is related to the similar conversation. I would like you to please introduce so ma'am, I would also like to know your journey. आप कैसे भक्ति में आए और अभी ग्राफिक एरा में how you came and like what brings you to bhakti and Krishna consciousness? मैं भक्ति में आई एक तो प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, और मेरे को इंटरेस्ट था भगवद गीता में, क्योंकि नाम बचपन से सुना था कि भगवद गीता भगवान ने बोली है, भगवद गीता भगवान ने बोली है। तो जब मैं 4th ईयर में थी, BTech 4th ईयर में, तो हमारे यहाँ एक सर आए जो कि ISKCON से कनेक्टेड, तो वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते थे भगवद गीता से, और मेरे अंदर बहुत पहले से ही बहुत ऐसा था कि मुझे जानना है कि क्या है भगवद गीता में, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे मुस्लिम थे। तो जब हम किसी बात पर डिबेट करते थे तो वो कहते थे हमारे कुरान में ये लिखा है, हमारे कुरान में ये लिखा है। तो मेरे को ऐसा लगता था इनको पता है कि इनके कुरान में क्या लिखा है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो मुझे और ज़्यादा, और फिर मैं सोचती थी भगवान ने बोला है तो कुछ इंटरेस्टेड कि क्या बोला होगा, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो भगवान ने बोली है और हम नहीं सुन पा रहे। इसके अलावा मेरे को भगवान की, जब मैं बहुत छोटी थी, 6 इयर्स की थी, तब से मुझे भगवान की कथा सुनने का, भागवतम जो होती है गाँव में, उसमें बहुत इंटरेस्ट। तो मैं जाती थी, कथा सुनती थी, यहाँ तक कि मैंने फर्स्ट चैंटिंग 4th और 5th क्लास, मतलब 4th और 5th क्लास में स्टार्ट करी थी फर्स्ट चैंटिंग। तब मुझे कुछ पता नहीं था, ISKCON के बारे में पता नहीं था, भगवान के बारे में सिर्फ कथा सुनी थी, ये नहीं पता था कि भगवान कौन है। बट चैंटिंग करना मेरे को अंदर से फील आया कि मुझे चैंटिंग करना चाहिए। मैंने कुछ टाइम तक चैंटिंग करी भी उस एज पे, बट पेरेंट्स नहीं, धीरे धीरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं करना है और बिजी कर दिया अदर वर्क में, तो फिर छोड़ दिया। बट एक क्वेश्चन था कि भगवद गीता मुझे पढ़नी है, और जब अदर स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि हमारे कुरान में ये लिखा है, तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि मैं क्यों नहीं बता पाती कि हमारी भगवद गीता में क्या लिखा है। exactly. तो फिर जब वो सर हमारे यहाँ आए तो उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना बताया। तो मैं दिल्ली गई कोचिंग के लिए आफ्टर कॉलेज। जब मैं कोचिंग करने गई तो कोचिंग में फिर ISKCON दिल्ली मैं गई। ISKCON दिल्ली जाने के बाद मैंने सबसे पहले मैंने देखा कि यार यहाँ पे पहले, मतलब मेरे अंदर ये था कि भगवान की पूजा करते, गुरु की पूजा करनी थी, मतलब अब प्रभुपाद जी को देखा, ये पता चला कि ISKCON मूवमेंट प्रभुपाद जी ने चलाया, लेकिन अंदर से एक फील होता है, जनरल जाता है कि गुरु क्यों, हम तो भगवान की पूजा करेंगे। तो ये वाला डाउट था मेरे को। फिर थोड़ा सा भगवद गीता तो मैं पढ़ना फिर मैंने स्टार्ट करा, थोड़ा सा मुझे सीनियर्स डिवोटी मिले, उन्होंने बताया। फिर मैंने एक दिन बैठ के प्रभुपाद जी के यूट्यूब में ना वो है, उनकी जर्नी है, जब वो अंतिम अपनी सांसें ले रहे थे, बॉडी वैसे तो वो मतलब साधारण नहीं है, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, बट जो वो सांसें, मतलब जब वो लेटे थे तब भी भगवान के बारे में बता रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। तो मैंने ना वो प्रभुपाद जी की वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर
धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने, जैसा ऐसा लगा मुझे कि उन्होंने मुझे और मोटिवेट कर दिया डिवोशन भगवत की गीता। तरफ, हाँ, भगवत कि गीता अब तो और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। पहले मुझे प्रभुपाद जी पे ही मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि इस्कॉन वाले ना भगवान को नहीं पूजा करते, की ज्यादा गुरु को पहले गुरु को। पूजा कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी के ही हरे कृष्णा मंत्र चल रहे हैं। हाँ। जब मैंने प्रभुपाद जी की वीडियोस देखी हम्म, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, डायरेक्ट हम भगवान को जा ही नहीं सकते, हमें प्रभुपाद जी के थ्रू ही भगवान के पास जाना पड़ेगा। और फिर डिफ़िकल्टीज ये थी कि मेरे पेरेंट्स नॉन डिवोटी है, पहाड़ी है, उत्तराखंड के हैं, तो हमारे यहाँ देवी देवताओं का कल्चर है एग्जैक्टली है ना। हाँ। तो वो हर जगह देवी देवता और नॉन वेज ये सब चलता है, लेकिन मैंने बचपन से नहीं खाया वो। मतलब अब भगवान की कृपा समझ लो कि उन्होंने पहले से ही, हमारी फैमिली में नॉन वेज खाते थे लेकिन मुझे नहीं दिया कभी। कि होता है जन्म पत्री में पहले ही बता देते हैं कि कि non-veg ये नहीं बच्चा खाना है। नॉन वेज नहीं खा सकता है, निर्वासी है करके। हाँ हाँ तो मेरे पेरेंट्स ने वो पहले ही नहीं खिलाया, कभी नहीं फोर्स करा। बट फिर जैसे मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट करा, उससे वो बहुत अपसेट, वो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं बहुत करते थे। अपसेट थे अपसेट चैंटिंग थे, से। हाँ, चैंटिंग नहीं, मतलब भगवान का नाम, अब भगवान के पास जाओ, दिया बत्ती करो और अब 10 मिनट वो उन्हें अच्छा लगता है, टीका लगाओ, पूजा पूजा हाँ, पाठ पूजा करो, बट पाठ करो, बस 2 मिनट में that- बस खत्म। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप माला लेके हो तो वो बात उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं कि ये बच्चे सन्यासी भटक ना- रहे, सन्यासी ना सन्यासी हो- ना हो रहे। हाँ, और ये जो हमारा पढ़ा रहे हैं, हमने इतना बीटेक कराया है और हाँ। ना हमने लगाया, वो सब जीरो ना हो जाए, तो एक उनके अंदर ना एक डर था। और ये इनफैक्ट हर पेरेंट के हर पेरेंट्स के होते होता ही है। हैं। हाँ, जो भी यूथ यंग एज में भक्ति करने का ट्राई जी, करता है, जी, जी। हर मतलब इनफैक्ट अगर मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स को भी होता है। तो बस ये मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम ही रही है। कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऐसे मतलब पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहोगे मतलब आपकी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी इन वीडियोस को देखेंगे, हमारे इन पॉडकास्ट को। एंड जो लर्न गीता लिव गीता है, इस बैच के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से पूछ कर ही इनरोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो दे आर कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स। तो वो बताते हैं कि हाँ कॉलेज में हो रहा है लर्न गीता लिव गीता, साइंटिफिक वे में कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं या कुछ भी। तो अब उनके पेरेंट्स भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि उनके माइंड में भी एक मिसकंसेप्शन हो। तो इस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं, उन पेरेंट्स को हम कैसे बता सकते हैं हाउ एंड व्हाई दिस इज़ अ नीड फॉर द यूथ एंड फॉर द स्टूडेंट्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ये जो आप अपने पेरेंट्स को जब आप पॉजिटिव वे में आंसर दो, अगर आप उनसे लड़ोगे कि नहीं मुझे चैंटिंग करना है, तो नहीं, आपको सिर्फ भगवान पे भरोसा होना चाहिए। कृपा उनसे, आपको सिर्फ आप उनसे प्रे कर सकते हो और आपको ना सही चीज़ करनी होगी। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स को लगेगा कि ऐसी कौन सी चैंटिंग कर रहा है, बात करने का इसको तमीज नहीं है ना। आप किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप बोल रहे हो, किस टाइम पे आप उठ रहे हो ना। तो जो आपका डिसिप्लिन है, जब वो देखेंगे ना कि ये मेंटेन हो रहा है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी थोड़े दिन में देखेंगे कि पॉजिटिव चेंज जब आएगा। आप बात करो, अगर आप उनसे रूडली बात करो, आप उनसे अच्छे से बात करो, आप उनसे कोई डिबेट मत करो, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आएंगे ना, आप बोल तो रहे हो कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शो नहीं कर रही उसे, आप कर गलत काम रहे हो, है ना। आप एक तरीके से गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और भगवान का नाम का सहारा नहीं, तो वो प्रॉब्लम है ना। अब भगवान का नाम लो, धीरे धीरे जो चैंटिंग है ना इतनी पावरफुल है, वो आपके पेरेंट्स का माइंड भी चेंज कर सकती है। इतना मेरे को पता ही, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब भगवत गीता पढ़ती थी तो मैं टेबल के आगे लैपटॉप, उसके आगे बुक्स वगैरह रख के, मतलब पेरेंट्स को दिखनी नहीं चाहिए, तब मैंने भगवत गीता पढ़ी है, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हाँ, चैंटिंग करती थी तो ब्लैंकेट के अंदर और इस तरीके से चैंटिंग करी। लेकिन आज के टाइम पे इतना टाइम अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। भगवान का नाम लेने में हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, है ना। जब कुछ अच्छा करते हो ना तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम, ये जो नाम जब हम कर रहे हैं बहुत पावरफुल, ये सब चीज़ सही कर देती है। आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब कलयुग में तो नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है ना, बहुत पावरफुल मंत्र है। और इसलिए नाम जब करोगे तो एक दिन पेरेंट्स भी मतलब धीरे धीरे मान जाएंगे। एग्जैक्टली।
और आपने ये जो पॉइंट बताया कि आप मतलब चुपके चुपके से डिवोशन की प्रैक्टिस करते थे, अब आजकल की जो यूथ है वो भी अपने पेरेंट्स से छुपा के गलत चीज़ें करती है, मूवीज़ देखने जाना या सिगरेट पीना, कुछ लोग तो ड्रिंकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी पेरेंट्स से छुपा के करते हैं। अगर वो चीज़ें हम छुपा के कर सकते हैं तो डिवोशन भी छुपा के कर सकते हैं, है ना? हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ जब हम चैंटिंग करते हैं ना, जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, तो हम आप बेसिक 4 प्रिंसिपल सब फॉलो करते हैं, है ना? जो बेसिक की हम नॉन वेज नो, हाँ नो इंटॉक्सिकेशन, है ना? कुछ भी ऐसे जो महापाप है वो हम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, एक तरीके से आपका जो बच्चा है वो सुधर रहा है, उसको पता है कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, है ना? आज के टाइम पे अब सब बोल रहे हैं कि नशा नहीं होना चाहिए, बच्चों को कैसे सुधारें, कि भगवत गीता पढ़ाओ वो खुद सुधर जाए, है ना? एग्जैक्टली, आज के टाइम पे अगर आपका बच्चा नॉनवेज नहीं खा रहा है, किसी को गलत तरीके से नहीं देख रहा है ना, किसी सबको रिस्पेक्ट दे रहा है, नॉनवेज नहीं कर रहा है, खा रहा है, नशा नहीं कर रहा है, तो वो आपका बेस्ट हुआ नहीं हुआ? बेस्ट हुआ ना? तो जब वो बेस्ट है ना, तो एक यही सॉल्यूशन है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी यही सॉल्यूशन दिखाना अप्लाई चाहिए करना कि चाहिए बजाय अगर आप कि वो, चाहते हो कि एग्जैक्टली, मतलब नशा ना हो, तो भाई भगवत गीता पढ़ो, बच्चों को वो संस्कार दिखाओ, उसे बताओ कि क्या इफेक्ट होगा। अभी एग्जैक्टली, के टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को तो लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, हाँ है ना? अभी मैं वृंदावन जा रही थी, तो मैं ट्रेन में बैठी थी, हाँ, तो एक स्टूडेंट ओके, आपकी एज का होगा, एक स्टूडेंट बैठा मेरे सामने, तो मैं चैंटिंग कर रही थी, तो उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आए, तो उसने कहा कि आप चैंटिंग क्यों कर रहे हो, उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो कहता है कि मैम वो बात तो ठीक है कि नॉनवेज से नहीं खाना चाहिए, लोगों को मतलब पशु मरते हैं, एनिमल्स है ना, हाँ, ड्रिंक होती है, लेकिन ड्रिंक करने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आप नॉनवेज खाते हो? कहते मैं खाता तो हूँ, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं ड्रिंक करता हूँ उसके बाद तो मैं खा लेता हूँ। तो मैंने कहा इसीलिए ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो क्योंकि आपके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। आप कोई भी आप खाओगे कब, गलत चीज़ कब नहीं खाओगे, जब आप अपने कंट्रोल में होंगे, आपके सेंसेस कंट्रोल में होंगे। तो जब आप अल्कोहल या किसी भी तरीके का नशा ले लेते हो, आप कंट्रोल में नहीं होते। अगर आप कंट्रोल में नहीं हो तो आप कुछ, आपको क्या पता क्या गलत है क्या सही है। इस पॉइंट में मोगलीला प्रभु जी कहते हैं कि अगर आप एक गलत काम की तरफ एक स्टेप बढ़ाते हो तो उसके भाई बहन साथ में आते हैं। राइट, मतलब अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो आप नॉनवेज भी खाओगे और आप और भी गलत काम करोगे एग्जैक्टली। साथ में। अब जैसे सेंस कंट्रोल की अगर बात आएगी है, तो कॉलेज के अंदर अब सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रहता है, सेंस कंट्रोल के ऊपर, और स्पेशली इसके ऊपर, इसकी वजह से आजकल काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है, जैसे रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं पता कि आपने ये चीज़ें देखी है नहीं, बट आपका क्या व्यू है अभी, जैसे अभी के इस जेनजी व्यू के अंदर, जैसे अभी जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं या सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, हर किसी का रहता है। अब तो स्कूल्स में ही होने लग गया ये सिचुएशनशिप्स वाला ट्रेंड, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया ये कल्चर, और स्पेशली इंडिया के अंदर, और हमारे कॉलेज में भी कहीं ना कहीं ये, सब जगह है। हाँ। तो इसके ऊपर क्या व्यू है आपका, मतलब इससे भी क्या हम बच सकते हैं डिवोशन के थ्रू? डिवोशनली जब एक व्यक्ति फॉलो करने लग जाता है भगवान को, तो उसको ये रियलाइज होता है बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, वी थिंक वी आर बॉडी, वी आर नॉट सोल, वी थिंक लाइक दैट, एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू अस इज आवर्स एंड वी एसोसिएट विद दोज थिंग्स। तो जब व्यक्ति ये बॉडीली लेवल पे सोचने लग जाता है, तब उसको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कंसेप्ट बहुत अप्रोचिंग लगने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हो तो आपको पता है कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। और भगवत गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सबको इक्वली देखता है, मतलब एक डॉग से लेकर एक महापुरुष तक सबको इक्वली देखता है, मतलब भगवान का पार्ट एंड पार्ट से समझ के देखता है। तो अगर वो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा है, देन ही विल गो बियॉन्ड दिस कंसेप्ट ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। And as per our Vedic scriptures also, if we go for Brahma Vivah and not Gandharva Vivah. Gandharva Vivah basically means if you fall in love with someone, then you marry that person. But it is better to go for Brahma Vivah, where you marry as per what your parents decide. And parents decide as per the qualification and eligibility of their ward.
So it is as per the Vedic scriptures, it is better to go for marrying as per ब्रह्म what. विवाह. For the first time I have heard these terms. मतलब ब्रह्म विवाह means जो arranged marriage अरेंज मैरिज हाँ, और गंधर्व विवाह Love means marriage. जो love love marriage. marriage. विदाउट पेरेंट्स With हाँ. अच्छा ओके. तो वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग गंधर्व विवाह से बेटर ब्रह्म विवाह होता है. लेकिन अगर आप किसी को सच में आप बहुत ज्यादा बिकॉज यू आर मटेरियली स्टिल सो मच engrossed, then if you really fall in love with someone, then you could go for marrying that person also and be committed to it. एग्जैक्टली मतलब जो कमिटमेंट है वो ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि जैसे आजकल जैसी चीज़ें होती है कि अभी कमिटमेंट है 2 महीने बाद कमिटमेंट नहीं. और जैसे सिचुएशनशिप अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसमें तो ऐसा होता है कि उनको खुद को क्लियर ही नहीं होता है कि वी आर इन रिलेशनशिप और नॉट. वो बस सिचुएशन को देखते हैं अभी आज सब सही चल रहा है तो दे आर वेल एंड कल सिचुएशन खराब है तो दे जस्ट मूव ऑन. कुछ नो स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड. लगता है कि जो सपोज आप अगर किसी से आप बोलते हो आप रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो इमोशनली, है ना, फिजिकली. आज के टाइम की बात कर रही हूँ. जो अभी के टाइम पे आप सो कॉल्ड लव है तो मतलब आप उससे कनेक्ट कर रहे हो कि ये आपको क्यों चाहिए, कोई बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए, गर्लफ्रेंड, इसीलिए चाहिए कि वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर वो आपको फिजिकली सपोर्ट कर रहा है, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए चाहिए. इसका मतलब आप एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. तो अगर आप एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो तो आप शादी करो और उसके बाद अपनी पढ़ाई करते रहो. ऐसा नहीं है कि शादी कर लो तो फिर आपको कोई ये कहता है कि भाई पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अभी भी तो पढ़ाई करने ही भेजा है ना, बट आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा ले रहे हो. तो आप अगर उस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो, है ना, आप कैपेबल हो. कोई बोलता है कि नहीं जल्दी शादी करना गलत है, तो शायद बॉयफ्रेंड बनाना भी गलत ही होगा. क्यों? क्योंकि आपको अगर सपोर्ट की नीड है तो आप लो ना सपोर्ट. मना देखो हमारे जो वैदिक जो है ना स्क्रिप्चर्स है वो सब कुछ आपको बता देता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अट्रैक्शन है, इसको नीड है. आप शादी करो, साथ में रहो, पढ़ाई करो, है ना, अच्छे से गृहस्थ रहो. लेकिन जो ये हो रहा है ना कि शादी नहीं करनी और बॉयफ्रेंड तो वो आप तो बिल्कुल एनिमल की तरह हो गए ना. हाँ एनिमल हो गए ना. एग्जैक्टली. क्या डिफरेंस रह गया एनिमल्स में और हम? कोई डिफरेंस है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आप शादी कर सकते हो, वो शादी नहीं करते. उनके यहाँ कोई मंडप नहीं लगता, कोई वेद नहीं पढ़े जाते हैं. वो तो खाना तो वो भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं, है ना. प्रोटेक्ट वो अपने आप को करते हैं, हम भी करते हैं. तो उनको अगर फिजिकल नीड्स के लिए वो किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं. तो आप एनिमल नहीं है, आप उनसे डिफरेंट है. आपके जो अगर शास्त्रों ने आपको अलाउ किया है, जिस तरीके से किया है आप उस तरीके से करो. तो अगर किसी को लगता है कि हमें नीड है, अगर किसी को लगता है कॉलेज में आके कोई सपोर्ट चाहिए और आपको कोई बेटर एक तरीके से बेटर पार्टनर मिलता है, तो आप वो विद देम गो फॉर द मैरिज और शादी करो, उनसे साथ में रहो, पढ़ाई करो और अपना स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करो. इससे क्या होता तो है, आपको डिप्रेशन अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए. अगर बताना आप चाहिए. ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं और आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को अप्रोच करना चाहिए. मतलब आप सजेस्ट कर और रहे हो फिर भी ब्रह्म विवाह मैं ये करने नहीं के लिए. कहूंगी, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी मतलब कुछ गलत प्रैक्टिस मत करो. मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन इवन इफ यू आर इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. You can know that person, but you cannot get involved so much that you lose your sanctity. एग्जैक्टली. मतलब जो प्योरिटी है वो चीज मेंटेन रखना ही चाहिए. कि आप अपनी चाबी ना किसी और के हाथ में दे देते हैं, वो आपको कंट्रोल करने लगता है. कि आप मेरा मन है, मैंने आपको सेट कर दिया, मेरा मन हुआ, मैंने आपको खुश कर दिया. आप अपने आप को खो देते, है ना. और अगर आप तैयार हो किसी और को चाबी देने के लिए, तो जैसे स्क्रिप्चर्स ने बोला है दे दो, है ना, एक विधि विधान के साथ दे दो. एग्जैक्टली. अब जैसे आपने ये चाबी वाली बात करी तो मैं इसको रामायण के जो कॉन्सेप्ट्स है वहाँ से काफ़ी रिलेट करवा रहा हूँ. जैसे मतलब सीता मैया और राम जी का जो लव था, काफ़ी चीज़ें वो टीच करके गया. जैसे जो सेल्फलेसनेस थी सीता मैया की, ऑल्दो शी हैड द चॉइस कि वो रह सकते थे वहाँ पर, बट फॉर द सेल्फलेस सर्विस ऑफ श्री रामचंद्र शी केम फॉर द एग्जाइल. वो 14 साल उनके साथ वनवास में रही बाय हर चॉइस. शी वॉज नॉट फोर्स्ड टू डू सो.
मतलब उनके पास पूरा राइट था। मतलब उस और ये जो लव वाला कॉन्सेप्ट है, आई थिंक जितना बेहतर तरीके से हमें रामायण, महाभारत या भगवत गीता से सीखने को मिलता है, उतना बेहतर तरीके से हमें आजकल की कोई भी बुक्स नहीं सिखा सकते। बिकॉज आई नो मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स who are giving these advice to people to start dating in their 20s, and I have seen like influencers जो बताते हैं कि आप you got in 20s तो कॉलेज में you look and explore these relationship sections, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यूथ है वो मिसडायरेक्ट भी हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एनीवेज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू इज कि इफ आई हैव सो मच ऑफ डिज़ायर्स, लाइक मैं एक बहुत, जैसे कॉलेज में बच्चे आते हैं सबका डिज़ायर होता है कि 1 करोड़ की प्लेसमेंट चाहिए या 2 करोड़ की प्लेसमेंट या मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या ये डिज़ायर्स को या इस जर्नी को स्पिरिचुअल लाइफ हैम्पर करती है? और अगर ऐसे डिज़ायर्स हैं किसी के तो वो कैसे मैनेज कर सकता है स्पिरिचुअलिटी को भी और मटेरियल लाइफ को भी? I think we should not be over ambitious. Like over ambitious नहीं होना कि जो चीज़ हम कर नहीं सकते, जो आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप जो कर सकते हो आराम से वो करो। बट आप एक धागे को, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि जैसे मैं भी चाहती थी कि मैं सीए करूँ, बट मेरे गुरु महाराज ने बोला, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि आप धागे को ज़्यादा खींचोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा ना। तो इसलिए इतना भी ओवर एम्बिशियस नहीं होना कि हम अपनी बॉडी को भी परेशान कर रहे हैं और हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी पीछे होते जा रहे हैं और हम वो चीज़ अचीव भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा हमसे। और इतना फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं अगर अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल ना कर पाए। सो वी आर नॉट सपोज टू बी ओवर एम्बिशियस। आप अगर आराम से कर सकते हो तो आप करो। एंड प्रभुपाद जी ऑल्सो सेज दैट वी आर नॉट सपोज टू लीव एवरीथिंग। हमें छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। मतलब अगर आपने वो टारगेट भी अचीव कर लिया, आप चाहते हो कि आप 1 करोड़ का मतलब आपका टर्नओवर हो, तो आपको डिजायर ऐसी रखनी चाहिए कि अगर टर्नओवर होगा भी तो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। Okay, I will use that for the service of Krishna, or for the service of humanity, like that. तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो आप स्पिरिचुअल के साथ आप करोड़पति अरबपति बनो, नो प्रॉब्लम। आप हमारे भगवान का एक नाम है सावरिया सेठ, टेम्पल है सावरिया सेठ करके, सावरिया सेठ कहते हैं। इसमें लोग भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। अच्छा, हाँ। ये ये कहा जाता है कल्चर में, पहाड़ में, राजस्थान में एक टेम्पल है सावरिया सेठ, कृष्ण जी का टेम्पल है। ठीक है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सेठों में से सावरिया सेठ, बाकी सब फोटो सेठ। तो सावरिया सेठ मतलब भगवान को भी, जब भगवान भी बिजनेस करना, बिजनेस पार्टनर, लेकिन एक शर्त होती है, भगवान का जितना परसेंटेज होगा ना आपको भगवान को देना होगा। 30%, सपोज 100% का बिजनेस है, 30 भगवान का है, 70 आपका है। अच्छा, तो भगवान इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको डबल करके देंगे। तो भगवान भी मना नहीं कर रहे हैं। हाँ। कि हमें क्या करना है, जो भी जितनी भी चीजें है ना नेचर में, ये बॉडी, ये आँख, नाक है ना, ये सब चीज भगवान के लिए तो है। ये आंखें दी है भगवान को देखने के लिए, कान दिए भगवान को सुनने के लिए, नोज दिए है भगवान के जो प्रसाद आता है उसको स्मेल करने के लिए। तो हम जिस तरीके से अपनी बॉडी को भगवान पे लगाते हैं, उसी तरीके से हमें जो आपका तो नहीं, लेकिन जो आप कमा रहे हो वो आपको भगवान पे अगर लगाओगे ना, आप भगवान के थ्रू, वैसे तो सब भगवान का ही है, कुछ भी हमारा नहीं है, वो जो भी बट हम बाय चॉइस अगर ऑफर करेंगे, हाँ, जैसे अगर भगवान हम ऑफर करेंगे हाँ। तो आप मुझे ये तो इस बात की गारंटी है, भगवान आपको कभी मतलब ऐसा नहीं करेगा कि आपको नुकसान है ना। क्योंकि जब क्या होता है कि कई बार मैं अपने फादर के लिए गिफ्ट लेके आती हूँ, जब मैं छोटी थी फादर के गिफ्ट लेके आती थी, फादर के पैसों से ही लेके आती हूँ, तो उन्हें खुशी होती है ना। वैसे ही भगवान का ही पैसा है, अगर आप उनको दोगे तो वो खुश होंगे। जैसे गंगा का पानी लेके गंगा को, गंगा जी का पानी लेके गंगा जी पे ही डाल देते, उन्हें ऑफर करते। वैसे ही मतलब पैसे आप कमा रहे हो, लेकिन एक तो पैसा सही तरीके से कमाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से पैसा आप लेके आ रहे हो, जानवरों को मार के पैसा लेके आ रहे हो, उससे कुछ कमाई हो रही है, या कुछ गलत एक्टिविटी से आपके पैसे आ रहे हैं। अगर आप सही तरीके से धर्म के साथ है ना, स्पिरिचुअल के साथ पैसा कमा रहे हो, तो भगवान को ऑफर करो,
और वो आपकी शायद आपके क्रेडिट से जो भगवान ने आपको दिया है इतने पैसे, है ना? Exactly. तो वो ऐसा नहीं है कि वो पैसे आपको खुद से मिल गए, वो आपने कुछ आपके अच्छे कर्मास थे आपको मिल गए, और आप चाहते हो कि वो मतलब मेंटेन रहे कर्मास, तो वो पैसे जिनके हैं उनको देते रहिए। जैसे आरती में भी बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये सब वही कुछ है। भगवान का है। मैं तो चाहती हूँ कि सारे स्पिरिचुअल लोग बहुत पैसे कमाएं हाँ, और फिर भगवान के नाम मतलब भगवान जी के मिशन में लगाए, मिशन में सपोर्ट मिशन में करें। लगाए, लोगों को प्रसाद बांटे, ब्रजवासियों की सेवा करें, है एग्जैक्टली। ना? तो पैसा तो जरूरी है ना? लेकिन सही तरीके से कमाओ और भगवान की तरफ, क्योंकि Hopeful भगवान करो। सेंटर में होने चाहिए। हाँ। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है भगवान को छोड़ के, भगवान को साथ सेंटर पे रख के। लेके आप Exactly. उस एक्टिविटी को करो।